Hi, good morning everyone. Today you learn chapter 4 integer class 6. Now I discuss today what is integers. So first you know what is integers. A group of numbers that include positive whole numbers, negative whole numbers and zero is called integers. एक कम्बिनेशन इंटीजर जो होता है पूर्णांक एक कम्बिनेशन होता है जिसमें होल नंबर जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कम्बिनेशन होता है, साथ में जीरो भी इंक्लूड होता है। तो इस सेट को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो सिंपल ए ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड पॉजिटिव होल नंबर्स, नेगेटिव होल नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। नाउ you know about positive integers. When you write 1, 2, 3, it is example of positive integers. Or you always remember a number greater than 0 is positive. Positive integers जो होता है वो हमेशा 0 से greater than होता है, means 0 से हमेशा बड़ा होता है। और negative integers for example -1, -2, -3 are example of negative integers. तो you always remember negative integers is smaller than 0. जो भी negative integers होते हैं वो 0 से छोटा होता है। और जब भी हम इसे लिखते हैं तो इसे हम लोग negative integer को लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव इंटीजर्स को राइट साइड में इंडिकेट करते हैं। तो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन नंबर लाइन। तो फर्स्ट यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन नंबर लाइन। तो फर्स्ट यू ड्रॉ table, draw a number line and take the midpoint of 0, then represent -1, -2, -3, -4 in left side. On right side positive numbers 1, 2, 3, 4 etc. तो you always remember 0 is neither positive nor negative. 0 जो होता है ना तो वो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, ये भी हमें याद रखना है। तो सिंपल है कि 0 जो होता है वो जस्ट लाइक अ बाउंड्री, और इन लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स एंड राइट साइड यू इंडिकेट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी कभी नंबर लाइन पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है तो एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, और नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप 0 को मिड पॉइंट मानेंगे और राइट साइड में आप पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और 0 जो होता है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। नाउ कम्स ऑन एक्सरसाइज 4A। Your first question, write the opposite of each of the following. You write the opposite meaning. Your first question, an increase of 8. It means increase by 8. So you write the opposite meaning of increase. So the opposite meaning of increase is decrease. So you write a decrease of 8. Your answer comes a decrease of 8. Now again second question, a loss of ₹7. So here you see loss. So you write the opposite meaning of loss. So you take gain. The opposite meaning of loss is gain. So you write a gain of ₹7. Now again third question, gaining a weight of 5 kg. So here you see gaining. So gaining you write opposite meaning of gaining. तो gaining losing, the opposite meaning of gaining is losing. So you write losing a weight of 5 kg. Now again 10 kilometer above sea level. तो 10 kilometer above sea level, तो you write the opposite meaning of above. So the opposite meaning of above is below. So you write 10 kilometer below the sea level. Now again question 4, 5 degrees Celsius below the freezing point. So you write 5 degrees Celsius above the freezing point. Okay. So below, the opposite meaning of below is above. So you represent 5 degrees Celsius
above the freezing point. Now again a deposit of rupees 100. Your next question, a deposit of rupees 100. So you write the opposite meaning of deposit. So your opposite meaning of deposit is withdrawal. So you write a withdrawal of rupees 100. Now again next question, earning rupees 500. So earning, the opposite meaning of earning is spending. So you write spending of rupees 500. Now again going 6 meter to east. So you write going 6 meter to the west. The opposite meaning of east is west. So you write going 6 meter to the west. Now again you have 24 positive numbers. So you write the opposite minus 24, and you have minus 34 negative number. So you write positive 34. Okay. So the opposite of 24 is minus 24, and the opposite of minus 34 is 34. Now again repeat your first question. Write the opposite of each of the following and increase of it. So write the increase, opposite meaning of increase. So you write a decrease of 8, a loss of rupees 7. So you write the opposite meaning of loss, gain. So you write a gain of rupees 7. Again question third, gaining a weight of 5 kg. So you write losing a weight of 5 kg. Now again 10 kilometer above sea level. So you write 10 kilometer below sea level. The opposite meaning of above is below. Again you have below, so you write above 5 degrees Celsius above the sea level. Now 5 degrees Celsius below the freezing point. So you write 5 degrees Celsius above the freezing point. A deposit of rupees 100. So you write a withdrawal of rupees 100. Earning rupees 500. So you write spending rupees 500. Now again going 6 meter to the east. So you write going 6 meter to the west. Again you have 24 positive integers. So you write the negative minus 24. And question 10 minus 34. So you write the opposite positive integers. So you write 34. Now you have question second, indicate the following using plus or minus sign. So if you have gaining, a gaining of rupees 600. So here you see the gaining. So you write plus 600. Again you have a loss of rupees 800. So here you see loss. Loss means minus. So you write minus 800. Again you see 7 degrees Celsius below the freezing point. So you write minus 7 degrees Celsius. You write minus 7 degrees Celsius. Again decrease of 9. So you write minus 9. 2 kilometer above sea level. So you write minus 2 kilometer. Plus 2 kilometer. Again 3 kilometer below the sea level. So you write minus 3 kilometer. Again a deposit of rupees 200. So you write deposit. Deposit means jama karna. So you write plus 200. And a withdrawal of rupees 300. So here you pushing your bank from rupees 300. So you write minus 300. Again mark the following integer on a number line. आपके पास कुछ integers हैं. For example -5, -2, 0, 7 and -13. So first you indicate -5. So you take a number line and represent 0 in middle. 0 को आप मिडिल में जो है इंडिकेट करेंगे और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 एंड -5 को इंडिकेट करके शो कर देंगे. क्वेश्चन 2 में -2 को आपको इंडिकेट करना है, तो आप एट द फर्स्ट मिडिल पॉइंट जो है वो 0 लेंगे और 0 लेने के बाद जो है आप लेफ्ट साइड में -1 और -2 को इंडिकेट करेंगे और -2 को इंडिकेट कर देंगे. फिर 0 को इंडिकेट करना है तो यू टेक ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट 0 ऑन द मिडिल. अगेन represent plus 7. So you take the middle point 0 and right side
या रिप्रेजेंट ऑन राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 and 7 and you indicate 7. Again you indicate -13, so you draw a number line. You draw a number line and represent -13. So first draw a number line and represent 0, and the left side indicate negative integers -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, and you indicate -13 on number line. Now your question 4, which number is larger in each of the following? आपके पास दो नंबर है और उस नंबर में आपको कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है वो आपको इंडिकेट करना है. तो यू हैव टू नंबर्स 0 and -2. तो ऑलवेज रिमेम्बर, आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो भी माइनस वाले नंबर होते हैं वो 0 से छोटा होता है. ये आपको हमेशा याद रखना है. तो 0 और -2 में बड़ा नंबर कौन सा है? तो 0 बड़ा होगा. अगेन आपका है -3 और -5, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? तो -3 है. अगेन है -5 और 2 है, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? तो 2 है. अगेन आपके पास है -16 और 8 है, तो इसमें बिगर नंबर कौन सा है या लार्जर नंबर कौन सा है? तो 8 है. और -365 और -913 में बिगर नंबर कौन सा हो जाएगा? -365. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन -888 एंड 8, तो योर बिगर नंबर इज 8. आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट को याद रखना होगा कि जो भी निगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटा होता है, और निगेटिव में जो नंबर जितना ही बड़ा दिखता है उतना ही वो छोटा होता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके पास -3 है और -5 है, तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? -3 बड़ा हो जाएगा. -5 जो है वो हमेशा छोटा रहेगा. और भी है, जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 है कि -365 है और -913 है, तो यहाँ पर भी आपका जो माइनस में ज्यादा होता है वो नंबर छोटा होता है, और जो माइनस में कम होता है वो नंबर बड़ा होता है. तो यहाँ -365 जो है वो हमेशा बड़ा होगा. Now again your question, next question. Your next question, write all integers between. आपको इंटीजर्स लिखना है, वो 0 और 6 के बीच का इंटीजर्स लिखना है. तो 0 और 6 के बीच का इंटीजर्स आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5. अगेन आपको -5 और 0 के बीच का इंटीजर लिखना है. तो -5 और 0 के बीच का इंटीजर -4 -3 -2 और -1 हो जाएगा. अगेन आपको -3 और 3 के बीच का इंटीजर्स लिखना है. तो -3 और 3 के बीच का इंटीजर्स जो है वो -2 -1 0 1 एंड 2 हो जाएगा. अगेन आपको -7 और -5 के बीच का इंटीजर्स लिखना है. तो -5 और -7 के बीच का इंटीजर्स -6 हो जाएगा. फिर है फिल इन द ब्लैंक्स. आपको फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन 7, और यहाँ पे सिंबल पुट करना है ग्रेटर और लेस देन का. तो 0 और 7 में जो है कौन सा बड़ा है? तो 0 और 7 में जो है वो 7 बड़ा है. अगेन आपका 0 और -3 है, तो -3 और 0 में 0 बड़ा है. अगेन आपका -5 और -2 है, तो -2 बड़ा है. -15 और 13 में 13 बड़ा है. -231 और -132 में -132 बिगर है. अगेन -6 and 6, तो यू कंपेयर, -6 इज स्मॉलर देन 6, so 6 is bigger. Okay, so you represent here 0 and 7, so 7 is greater. 0 and -3, so 0 is greater. -5 and -2, so -5 and -2, so -2 is greater. Again -231 and -132, so -132 is greater. -6 and 6, so you compare -6 and 6. So always remember
द नेगेटिव नंबर इज लेस देन द पॉजिटिव नंबर। जो भी नेगेटिव नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। तो 6 इज बिगर। नाउ राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द ascending order. Your next question 8. Write the following integers in the increasing order. क्वेश्चन 8 में आपको जो है सो जो भी नंबर है उसको जो है इंक्रीज ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपके पास है 5 है, -7 है, -2 है, 0 है और 8 है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका सबसे छोटा नंबर है -7, नेक्स्ट है -2, फिर 0 है, फिर 5 है और फिर 8 है। तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले -7 लेंगे, फिर -2 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 5 लेंगे और फिर 8 लेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन -23, 12, 0, -6, -100 एंड -1। तो योर स्मॉलर नंबर इज -100, सो यू राइट फर्स्ट present -100, again take -23, again -6, again -1, 0 and 12. So 12 is bigger and -100 is smaller. Your third question, your smallest number is -501, again -363, again -17, now positive 15 and 165. Your question 4, you have 21 -106 -16, again +16, 0, -2 and -81. So you represent in ascending order. So first you take -106, again -81, again -16, again -2, again 0 and +16 and +21. Now write the following integers in descending order. So in descending order you write the bigger number first. So you have a number 0, 7, -3, -9, -132 and 36. So first you take 36 because 36 is positive integers and bigger. So you take first 36, now again 7, 0, -3, -9 and -132. सबसे पहले आपको बिगर नंबर लेना है। तो बिगर नंबर आपका 36 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका 7 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और 0 से जो भी नेगेटिव इंटीजर्स होता है वो छोटा होता है। तो आप सबसे पहले -3 लिखेंगे क्योंकि -3 और -9 में जो है -3 बड़ा है। तो जो भी बड़ा नंबर होता है उससे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो -3 को रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट आप -9 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर -132 को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव नंबर जो भी होता है वो 0 से ग्रेटर होता है। तो आप सबसे पहले 51 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर -2 लेंगे, फिर -8 लेंगे और फिर -53 लेंगे। नाउ क्वेश्चन थर्ड, you take the first 36, again 0, -5, -71 and -81. Now question 4, you take 413, again 102, -7, -365 and -515. Now your question 10, using the number line write the integer which is 4 more than 6. तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, जस्ट लाइक आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद आपका ये 4 मोर देन 6 है। तो सबसे पहले आप 6 पे जाएंगे, 0 से 6 और अगेन 6 से 4 स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 and 9 to 10. ओके, तो 4 more than 6 equal to 10. अगेन 5 more than -6. तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और वहां पे पहले आपको 0 से -6 पे जाना है और 0 से -6 पे जाने के बाद आप बैक जो है सो फिर आएंगे 5 स्टेप। तो 1 स्टेप में आप -5 पे पहुंचेंगे, फिर -4 पे, -3 पे, -2 पे और फिर -1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 लेस देन 2। तो सबसे पहले आप 0 से 2 पे जाएंगे और 0 से 2 पे जाने के बाद +2 पे जाने के बाद वहां से माइनस होते जाएंगे, यानी 6 स्टेप आपको बैक जाना है।
तो आप 2 से 1 पे जाएंगे, फिर 1 से 0 पे जाएंगे, फिर 0 से -1 पे जाएंगे, फिर -1 से -2 पे जाएंगे, फिर -2 से -3 पे, और फिर -3 से -4 पे। तो यहाँ पे आपको 6 स्टेप बैक जाना है, और जब भी कभी आपको 6 लेस देन 2 निकालना है तो आपका आंसर -4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेस देन 2 लेस देन -3। तो फर्स्ट यू गो ऑन -3 एंड अगेन 2 स्टेप लेफ्ट, तो -4 एंड -5, तो यू गो ऑन -5। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, तो नो, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज नॉट बी 0। आपका पहला क्वेश्चन है क्या 0 जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर है, तो नहीं, 0 जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है। क्वेश्चन 2 है 0 इज नॉट एन इंटीजर, क्या 0 इंटीजर नहीं है, तो नहीं, ये भी स्टेप आपका गलत है कि 0 एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है। योर क्वेश्चन 3, द अपोजिट ऑफ 0 इज 0, क्या 0 का अपोजिट 0 होता है, तो हाँ, 0 का अपोजिट 0 होता है, क्योंकि 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है -10 इज ग्रेटर देन -6, क्या -10 जो है वो -6 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, -6 10 जो है वो ग्रेटर देन 6 होगा, तो -10 इज स्मॉलर देन 6, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है इंटीजर का, क्या वो इंटीजर से हमेशा ग्रेटर देन होता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो दिस इज बिकॉज ऑफ ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, फॉर एग्जांपल -2, तो -2 is an integer but its absolute value is 2, so it is greater than -2, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है आपका, क्वेश्चन 6 है कि 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, 0 जो होगा वो हमेशा जो है जो भी नेगेटिव इंटीजर्स है उससे वो बड़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 है कि एवरी नेगेटिव इंटीजर्स इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर, जो भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं क्या वो जो है सो लेस देन यानी छोटा होता है जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर से छोटा ही होता है। और 8 में है क्या कि -187 है, और इसका जो सक्सेसर होगा वो सक्सेसर जो है वो आपका -186 हो जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन है इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि -187 का सक्सेसर -188 होगा, तो ये स्टेप फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रीडेसेसर ऑफ -215 इज -214, तो इट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, so you write the false. Now find the value of -9, तो -9 absolute value of -9 is 9 plus 9 and -36 is plus 36, 0 is 0 and absolute value of 15 is 15 and absolute value of -3 is -3. Now your question 13, write the 5 integers greater than -7। आपको 5 इंटीजर्स लिखना है जो -7 से बड़ा है, तो आप इसमें लिखेंगे -6, -5, -4, -3, -2 और -1, जो इंटीजर्स -7 से ग्रेटर है। और क्वेश्चन 2 है कि राइट 5 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -21, -21 से लेस देन लिखना है 5 इंटीजर्स, तो आप -21 लिखेंगे, -21 लिखेंगे,
अगेन -22 लिखेंगे, -23, -24 एंड -25. तो इट इज योर चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4A by Deepak Kumar. Bye. Have a nice day.